Today we do the theorem let f be an infinite field and E be some field extension of f. Field extension of f. Let A B belongs to E, be algebraic over f such that they are separable over f. Then there exists C belongs to K such that FC is equal to FOAB and C is equal to A plus alpha B, where alpha, for some alpha, belongs to F. So F be an infinite field and E be some extension of F, and let AB belongs to E be algebraic over F and separable over F. So we want to show that there is C belongs to K such that FC is equal to FAB and C is equal to A plus alpha B, where some alpha belongs to F. Proof of the theorem: let fx and gx be the minimal polynomial over f of A and B respectively. Minimal polynomial of A is fx and of B is gx over f, and let degree of fx be m and degree of gx is n. Let K be the splitting field of fx gx over E. This is the splitting field. Then AB belongs to K, because K is the splitting field of this and A and B are roots of fx and gx, therefore AB belongs to K. Clearly, every root of fx is a root of fx gx. This is clear. Therefore, K contains splitting field of fx, because K is the splitting field of this and therefore K has all the roots of fx. Therefore K contains splitting field of fx. Similar is the case for gx. K contains splitting field of gx. Therefore also K contains splitting field of gx. K दोनों की स्प्लिटिंग फील्ड कंटेन कर गया. नेक्स्ट हमारे पास है given that A, B are
separable over f. They are separable over f. This is given. अगर ये सेपरेबल है तो इनकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी फील्ड एक्सटेंशन में या स्प्लिटिंग फील्ड में सभी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. Therefore, fx has m distinct roots in its splitting field. m distinct, क्योंकि इसकी डिग्री है m तो इसके m distinct roots होंगे. fx has m distinct roots a1, a2, am इनके. सिमिलरली b की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो gx है, उसके भी k में वो भी उसकी भी k स्प्लिटिंग फील्ड है तो इसके भी k में डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. Therefore gx and gx has उसके n डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. n distinct roots b1, b2, bn in k. ठीक. Now for define lambda ij define lambda ij belongs to k because a जो है वो भी ai है तो ai bi जो है k के एलिमेंट है तो ये सारा क्योंकि k फील्ड है इस करके ये सारा एलिमेंट k का बनेगा. इसको हमने लैम्डा आई का नाम दे दिया. और क्योंकि अगर b1 होगा, ठीक है, तो ये b1 होगा तो b माइनस b हो जाएगा. इसी तरह a1 होगा तो a माइनस a हो जाएगा तो 0/0 फॉर्म में बन जाएगा. तो ये डिफाइंड नहीं है, इस करके हमने 1 नहीं लिया. ठीक है, तो हमने यहां से 2 से स्टार्ट कर लिया ताकि ये जो डिफाइन हो जाए. सो ये टोटल ये फाइनाइट नंबर्स हैं ए आई बी आई, तो इसका मतलब ये टोटल लैम्डा आई जे कितने बनेंगे, फाइनाइट बनेंगे. देयरफॉर लैम्डा आई जेज आर फाइनाइट इन नंबर. ये फाइनाइट होंगे एज एफ इज एन इनफाइनाइट फील्ड, क्योंकि एफ इनफाइनाइट फील्ड है, इसके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं. हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और के इसकी एक्सटेंशन है. इसमें फाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट तो के में भी तो इनफाइनाइट होंगे. अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो सो एफ में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ये फाइनाइट है. तो एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा एफ में जो इनसे डिफरेंट होगा. ठीक है, therefore we can find an alpha belongs to f such that alpha is different from this for all I j greater than or equal to 2. Then alpha not equal to ai over b minus bj. Therefore we can write alpha b minus bj not equal to this for all ij greater than or equal to 2. और इधर हम क्या इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी ai
प्लस अल्फा बी जे नॉट इक्वल टू ए प्लस अल्फा बी। तो सी की वैल्यू हमें पता ही, हमने क्या लेनी है, ए प्लस अल्फा बी। सी इसको पुट कर देंगे तो ये ए बी, अगर ए बी, क्योंकि ए बी एफ ए बी में आते हैं तो इसके ये एलिमेंट भी, क्योंकि अल्फा एफ का एलिमेंट है तो ए बी अल्फा, तो ये सारा एलिमेंट किसका आ गया, एफ ऑफ ए बी का आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब सी बिलोंग कर गया एफ ऑफ ए बी में, तो यहां से आ गया एफ सी इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ ए बी। वैसे हमने प्रूव क्या करना है, जो एफ सी है वो इसके बराबर आ जाए। तो अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसमें कंटेंट है, फिर उसके बाद ये बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट, since C belongs to FC and every coefficient of fx is in F, तो जो F के एलिमेंट है वो K में भी है, तो ये कोफिशिएंट आल्सो इन K आ जाएंगे। ये fx के जो कोफिशिएंट है जो f में है वो k में भी आ जाएंगे। देयरफॉर ये पॉलिनोमियल हम ओवर k भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर हम hx पॉलिनोमियल ले लेंगे एफ सी माइनस अल्फा एक्स ओवर के। ये पॉलिनोमियल हम ओवर k ले लेंगे क्योंकि c भी k में आ गया। ठीक है, और अल्फा भी f का, जो भी f के एलिमेंट है वो k में आ जाएंगे, तो c भी k में आ गया। अल्फा f का एलिमेंट है वो भी k में आ गया, c भी k में आ गया। तो इस हिसाब से जो कोफिशिएंट्स और f खुद जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी f में है, वो भी k में आ गए, तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगी वो k में ओवर k आ जाएगी। फर्दर क्लियर है, जो इसकी डिग्री है वो fx के बराबर है, सिर्फ x को तो x ही रहने दिया ना हमने। ठीक है, सिर्फ c माइनस अल्फा x पुट किया है, तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम आएगी। देयरफॉर डिग्री ऑफ hx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ fx, दिस इज m। नाउ hb, अगर हम इसको b पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ a, यहां से a माइनस c माइनस अल्फा b a आ जाएगा। तो a fx को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब hx को b सेटिस्फाई करने लग गया। Therefore B satisfies H. Suppose for some j greater than or equal to 2 H B J is, तो हमें पता है कि जो B1 है वो B है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं, तो हमने ले लिया कि B सेटिस्फाई कर रहा है B1, हम देख रहे हैं कि B2 या Bn ये कोई सेटिस्फाई सपोज करो कर रहे हैं, मान लेते हैं कि करते हैं। ठीक है, यानी कि B2 भी करता है, B3 भी करता है और Bn भी करता है इसको सेटिस्फाई। दिस इंप्लाइज, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे एच बी जे इज इक्वल टू दिस, देन एफ सी माइनस अल्फा बी जे इज आल्सो 0। अगर ये 0, ये इसकी 0 है तो इस एफ की जीरोस कौन कौन सी हैं,
एफ की जीरोज है A1 A2 AM तक। इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं fx को तो ये ai's के बराबर आ जाएंगे। Therefore c minus alpha bj is equal to ai for sum I, क्योंकि ये इसके आर रूट्स ऑफ fx। इफ I is equal to 1, if this is equal to a1, अगर ये a के बराबर है, a1 is equal to a, then alpha c minus alpha bj is equal to a, तो यहां से आ जाएगा c is equal to a plus alpha bj, that is alpha, और c किसके बराबर है? c की वैल्यू है हमारे पास a प्लस अल्फा बी, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू a प्लस अल्फा bj, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू bj के बराबर, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, ये गलत हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि जो b है वो b1 के बराबर है, वो b2 bm के बराबर नहीं है, यहाँ पर b इनके बराबर भी आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब कोई भी bj hx को सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ यही सेटिस्फाई करता है hx को, बाकी ये b2 bm अगर 2 से शुरू करते हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते। Hence HBJ not 0 for j greater than or equal to 2। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है, ये इसका रूट नहीं है hx का, ठीक है, तो अगर ये इसका रूट नहीं, सॉरी इसका फैक्टर नहीं है, तो ये hx को डिवाइड भी नहीं करेगा, तो दिस डज नॉट डिवाइड hx, क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है, बट ये फैक्टर है, दिस इज ए फैक्टर ऑफ hx ओवर k, क्योंकि जो ये पोलिनोमियल hx लिए हमने ओवर k लिए, तो उसकी डिवीजन भी हम ओवर k ही करेंगे, ठीक है, चाहे ओवर f भी उसके एलिमेंट आ रहे, लेकिन जो f के एलिमेंट होते हैं वो k में ही आ जाते हैं, ठीक है। b is also a root of gx, तो b gx का भी रूट है, क्योंकि b की जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो gx है, ठीक है, इनके सो x माइनस बी इसका भी फैक्टर हो गया और इसका भी फैक्टर हो गया, देयरफॉर x माइनस बी इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ hx एंड gx, ठीक है। अब हमने क्लेम करना है कि जो x माइनस बी है इज देयर HCF, ये HCF है hx की और gx की, सिंस fx हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, इनका कोई भी मल्टीपल रूट्स नहीं है, अगर इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो दिस इंप्लाइज x माइनस बी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड gx, जो x माइनस बी का स्क्वायर है वो gx को डिवाइड नहीं करेगा,
सिंस gx इज इक्वल टू x माइनस b टू, ये इसके फैक्टर्स हैं। एंड x माइनस bj ये hx को भी डिवाइड नहीं करते। दिस इंप्लाइज, देखो x माइनस b में भी ये एक बार आ रहा है, इसके डिस्टिंक्ट रूट्स है, और इसी तरह hx को भी ये सिर्फ x माइनस b डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी x माइनस b की पावर 1 ही फैक्टर आ रहा है hx में। तो gx के भी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसमें भी gx के, यहां पर लिखना हमने gx हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है तो x माइनस b की पावर 2 नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरह x माइनस b की पावर 1 ही hx का फैक्टर है, और x माइनस b की पावर 1 भी gx का ही फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देयरफॉर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब इसकी पावर 1 है, वो हाईएस्ट है। सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ gx एंड hx। ये हमारा क्लेम हो गया। नाउ hx, जो hx है ये हमारे पास है c माइनस अल्फा x, हमने इसको लिया ओवर kx, ठीक है। इसको ओवर fc भी ले सकते हैं, क्योंकि c fc में आ गया, अल्फा f में आ गया, तो इसको ओवर हम fc भी ले सकते हैं। नाउ hx इज ए पोलिनोमियल ओवर fc as c belongs to fc and alpha belongs to f. gx is also a polynomial over fc because gx is a polynomial over f ओवर f। अगर कोई पोलिनोमियल ओवर f है तो उसको ओवर बड़ी फील्ड भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोफिशिएंट है f में, तो वो कोफिशिएंट fc में भी आ गए। सो दिस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज पोलिनोमियल ओवर fc। लेट g1x be the minimal polynomial of b over fc, ठीक है। जो b की मिनिमल पोलिनोमियल ओवर f है वो gx है, तो ओवर fc लेंगे तो उसको नाम देंगे, कोई दूसरी होगी ना, वो g1x होगी। इसका मतलब है g1x डिवाइड्स gx। हमने क्वेश्चन किया हुआ है ना, अगर कोई मिनिमल पोलिनोमियल है, a की मिनिमल पोलिनोमियल अगर px है, तो px डिवाइड करेगी fx को, अगर इसको a सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर a इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ px और किसी को भी a सेटिस्फाई करता है, उसको px डिवाइड करेगा। सेम वे, क्योंकि ओवर fc हमने फील्ड सेम रखनी है, ठीक है। अगर ओवर fc gx को b सेटिस्फाई करता है और b की मिनिमल पोलिनोमियल ओवर fc है g1x, तो g1x इसको डिवाइड करेगा। इसी तरह b भी इसको सेटिस्फाई करता है, जिसको भी b सेटिस्फाई करेगा ओवर fc, मिनिमल पोलिनोमियल b की ओवर fc उसी को डिवाइड करेगी। तो hx भी b को सेटिस्फाई करता है ओवर fc। So this implies g1x also divides hx।
अगर कोई भी पोलिनोमियल, मैंने पहले भी कहा, अगर कोई भी पोलिनोमियल ओवर एफ लेते हैं तो उसको ओवर द बड़ी फील्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि वो कोफिशिएंट्स जो एफ में है वो इसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये इनको ओवर एफ सी डिवाइड कर रहा है तो एफ सी से बड़ी फील्ड है के, तो हम कह सकते हैं कि ये कोफिशिएंट इसमें भी आ गए, तो ये डिवाइड करेगा ओवर के आल्सो। दिस इंप्लाइज g1x divide gx and g1x divides hx over k also. Since g1x divides x minus b ओवर के, क्योंकि ये पॉलिनोमियल अगर ओवर के है, ठीक है, क्योंकि b के का एलिमेंट है, b इसको सेटिस्फाई करता है, तो जिसको भी b सेटिस्फाई करता है उसको इसमें डिवाइड कर देना। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, सॉरी, क्योंकि जो HCF है, हमने HCF फाइंड किया है HX और GX का, ये HCF है हमारा x माइनस बी ओवर के। तो अगर G1 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उनके HCF को भी डिवाइड करेगा ओवर के। सो G1x डिवाइड्स देयर HCF ओवर के। This implies G1x divides x minus b over k. अब G1x इसको डिवाइड कर रहा है, तो G1x है क्या? मिनिमल पॉलिनोमियल। दिस इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर ये मिनिमल है तो ये मोनिक है, देयरफॉर G1x इज मोनिक। तो ये मोनिक भी है, इसको डिवाइड भी कर रहा है, तो ये फर्स्ट डिग्री की है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। इससे कम डिग्री की तो कोई पॉलिनोमियल हो नहीं सकती, मोनिक भी है तो उसको कम से कम उसको 1 डिग्री की तो होना भी पड़ेगा, और डिवाइड भी कर रहा है तो ये आपस में बराबर आ जाएंगे। Therefore G1x is equal to x minus b। ठीक है, और ये पॉजिटिव डिग्री की भी है, G1x is of पॉजिटिव डिग्री। तो यहां से हमारे पास आ गया कि ये आपस में बराबर है। Now G1x is a polynomial. We know that G1x is a polynomial over FC. तो इसका मतलब ये polynomial over FC आ गई, इसको बिलोंग करगी FC को। ठीक है, therefore x minus b belongs to FC। इसका मतलब जो b है किसको बिलोंग कर गया? FC को बिलोंग कर गया। ठीक है, b FC को बिलोंग कर गया, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है? c है हमारे पास a प्लस अल्फा b। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? तो a की वैल्यू आ जाएगी c माइनस अल्फा b। तो देखो b FC का एलिमेंट है, अल्फा f का एलिमेंट है, c तो FC में ऑलरेडी है, b भी FC में है, तो ये सारे का सारा एलिमेंट किस में आ गया? और f FC में कंटेन्ड भी है, तो ये सारा एलिमेंट FC को बिलोंग कर गया। ठीक है, इसका मतलब a और b दोनों FC में आ गई, a b FC में आ गई। अगर a b FC में आ जाते हैं
तो इसका मतलब ये फील्ड भी FC में कंटेन्ड कर जाएगी। तो हमने पहले क्या किया, प्रूव किया था FC इसमें कंटेन्ड है, अब हमने प्रूव कर दिया ये FC में कंटेन्ड है। एंड इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है। दिस इंप्लाइज f of AB is equal to f of C. This completes the proof.